ਮੈਨਸੂਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਾਕੜ ਜੇ ਔਰ ਇੱਕਦਮ ਬੰਬ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ੁਭਚਿੰਤਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੁੰ ਲੱਗੇਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਚੁਟਕੀਆਂ 'ਚ ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਪੈਨ ਬਿਨਾਂ ਪੇਪਰ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਟ੍ਰਿਕੀ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਟ੍ਰਿਕ ਦੀ ਡੋਜ ਹੈ, ਮੈਨਸੂਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਟੌਪਿਕਸ ਕੰਟੀਨਿਊ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਬਹੁਤ ਪੈਨਿਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੈਨਿਕ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਇੱਕ ਸਿਟਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਿਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਿਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨਸੂਰੇਸ਼ਨ ਪਾਰਟ 25 ਹੋਏਗਾ। ਬੇਸਿਕ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਕੀ ਮੈਥਡ ਦੋਨੋਂ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ, ਕਨਸੈਪਟ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਗਿਲਜ ਮੈਂਟੋਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪੇਡ ਕੋਰਸ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਿਹਤਰੀਨ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਿੱਥ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਿ ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸੀਗੇ। ਘਰ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਦੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਇਹ ਜੋ YouTube ਤੇ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਲੁਫਤ ਆਨੰਦ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਇਨਰੋਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਰੋਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿੰਕ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਲਿੰਕ ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਡ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪਲਾਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਯੂ ਕੈਨ ਵਿਨ ਦਾ ਐਂਡਰੋਇਡ ਫੋਨ ਐਂਡ 1100 ਕੈਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਐਂਡ 6 ਮੰਥ ਜੀਓ ਰਿਚਾਰਜ ਫ੍ਰੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਕੰਸੈਪਟ ਸਮਝ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਕੰਸੈਪਟ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਹੈ। ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦੀ ਮੈਂ ਅਗਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਅਗਰ ਸਪੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈਂਥ 100 ਹੈ, ਬ੍ਰੇਥ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 100 ਹੈ। ਤਾਂ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦਾ ਜੋ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਲੈਂਥ ਇਨਟੂ ਬ੍ਰੇਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ 100 × 100 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ? 10,000 ਹੋਏਗਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਚਲਿਏ, ਅਗਰ ਸਵਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਲੈਂਥ ਨੂੰ 20% ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ 20% 100 ਦਾ 120 ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਬ੍ਰੈਥ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 20% ਘਟਾ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਘਟਾ ਦੋਗੇ ਤਾਂ 80 ਕਰ ਦੋਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਵਾ 120 ਲੈਂਥ ਹੈ ਤੇ 80 ਇਹ ਟੋਟਲ 12 × 96 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 9600 ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਦੱਸੋ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜਨਾਬ 400 ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੱਢਾਂਗਾ? ਲਾਸ। ਮਤਲਬ ਕਿ 400 ਹੋਇਆ ਕਿੰਨੇ ਤੇ? 10,000। ਐਕਚੁਅਲ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ? 10,000 ਸੀਗਾ। ਤੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਜਦੋਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ 100 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, 100 ਨਾਲ 100 ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਓਵਰਆਲ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ? ਓਵਰਆਲ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਕਿ 4% ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇੱਥੇ ਲਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਲਾਸ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬੰਬ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਟ੍ਰਿਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਨਸੈਪਟ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ, ਨੋਟ ਕਰੋ। ਸਕੁਆਇਰ ਹੈ, ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੈ, ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗਾ ਐਂ ਖੈਰ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੈ, ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਇਕੁਇਲੇਟਰਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਈਸੋਸੈਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਕੈਲਨ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਕੁਆਇਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰਲ ਹੈ। ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਲੇਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਰੋਮਬਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਟ੍ਰੇਪੇਜ਼ੀਅਮ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਰਕਲ ਹੈ। ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਡੀਅਸ ਹੈ, ਰੇਡੀਅਸ 'ਚ ਡਾਇਮੀਟਰ ਹੈ। ਡਾਇਮੀਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆ ਜਾਓ ਨੈਕਸਟ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿਊਬ ਹੈ ਪਲੱਸ ਕਿਊਬੋਰਡ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਅਗਰ ਸਿਲੰਡਰ ਹੈ, ਸਿਲੰਡਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਫੀਅਰ ਹੈ, ਹੈਮੀਸਫੀਅਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫਰਸਟਰਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਨ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਟੌਪਿਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਇਹ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਮੈਂ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ 100% ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ। ट्रिक की है सारे स्टूडेंट्स नोट करो। ट्रिक हैगी है कि a प्लस b तो तुसी की यूज करना a प्लस b दैन यू यूज हेयर प्लस a a इंटू b अपॉन यूज करना वा 100। देखो हुण इस सवाल का मतलब की इस सवाल ते चलते हैं। मैं तुहानू क्या कि किसी भी रैक्टेंगल की लेंथ नू की किया जाता है 20% डिक्रीज कर दिता गया है, 20% डिक्रीज किया गया, 20% इनक्रीज किया गया।
ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਲੱਸ ਲਿਖੋਗੇ, ਜੋ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਣਾ ਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਲਾਓਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਮਾਈਨਸ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਅਪੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 100 ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, 100 ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, 0 ਨਾਲ 0 ਕੱਟ ਦੋਗੇ, 0 ਨਾਲ 0 ਕੱਟ ਦੋਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਖਤਮ ਹੈ। ਇੱਥੇ 2 ਪਲੱਸ ਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਨਟੂ 2 ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕੀ ਆਏਗਾ, 4 ਹੈ। ਮਾਈਨਸ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਡਿਕਰੀਜ਼, ਡਿਕਰੀਜ਼ ਮੀਨਸ ਲॉस। ਤਾਂ 4% ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ XYZ ਤੋਂ ਲਫੜੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਆਨਸਰ ਇੱਕਦਮ ਬੱਟ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਗਾਰੰਟਡ ਹੈ। ਇਸ ਕਨਸੈਪਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਸਵਾਲ ਵੀ ਆਊਟ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। शुरू करते हैं। पहला सवाल धमाकेदार क्वेश्चन थोड़ा स्क्रीन ते दे रखे है। सवाल च कि इफ द रेडियस ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर open at a both the ends it decrease by 25%, height of the cylinder is increased by 25%, then the covered surface area of the cylinder thus formed। तो अपने कोले की है कि पहला 20% डिक्रीज कर रहे हैं, फिर अपने कोले 20% इंक्रीज कर रहे हैं। आ लो जनाब आप इतने 25 देखो फॉर्मूला किहड़ा आ गया, मेरे नाल सारे जने बोलो a + b, हाँ जी, फिर आएगा a * b बटा कितना आ जाना 100। अपने ट्रिक है, लेकिन इन्हों माइनस प्लस अपने अकॉर्डिंग आप करते चलांगे, क्योंकि आप मैं प्लस यूज इस करके करदा है क्योंकि मैं चाहना कि साढ़े पॉजिटिव एनर्जी रहे। ठीक है, फिर अपने कोले आ जाना 25, फिर अपने कोले -25 इंटू तुहाडे कोले +25 और अपॉन दे विच 100 है। क्लीयर है। हुण देखो की करना, ए माइनस प्लस दोनों कैंसिल हो गए, 25 ਨੂੰ 25 ਨਾਲ मल्टीप्लाई किया की आएगा 625 है, और माइनस ਨੂੰ प्लस ਨਾਲ करोगे तो माइनस और बटा दे विच 100 है। भाग करोगे तो तुहाडे कोले कितना आ जाना 6.25 आंसर आ जाना। इसका मतलब है डिक्रीज होएगा। तो व्हाट विल बी करेक्ट चॉइस एंड व्हाट विल बी राइट आंसर। तो दिस इज ए डिक्रीज 2.5% 6.25%। यस गाइज, बिना पेन बिना पेपर कंसेप्ट कर सकते हो, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज ਤੁਸੀਂ अगर इस नूं सॉल्व करोगे तो थोड़ा वक्त जाया करेगा। बहुत स्टूडेंट्स गलतियां करके आउंदे ने, बहुत सारे स्टूडेंट्स कुछ नहीं करना, मेरे इस कंसैप्ट नूं इंप्लीमेंट करो और 1 सेकंड च आंसर आएगा। देखो अगला सवाल है, एरिया ऑफ द बेस ऑफ ए कोन, एरिया ऑफ बेस ऑफ ए कोन। अगर मैं जिथों तक गल करा, अगर देखो जो कोन हुंदा है ना, कोन जो कोन हुंदा है इस सिलेंडर का 3rd पार्ट हुंदा है। ठीक है, ये अंदर आप इदा करांगे, ये तो अपने को रेडियस होगी, दिस इज की हो गया अपने को हाइट होगी, और जो सिलेंडर है जो कोन है वह वॉल्यूम हुंदा है πr²h, क्योंकि की हुंदा है πr²h तो सिलेंडर का हुंदा है। बेसिकली सिलेंडर का 3rd पार्ट कोन हुंदा, सो दैट वी विल पुट हियर 1/3 है। ऐसा कुछ भी नहीं करना, इनू यूज ही नहीं करना, गल ही खत्म कर दो। तुहानू पता है कि एरिया इन्हें पूछा है, इफ द एरिया ऑफ बेस कोन डिक्रीज बाई 100% है, दैन वॉल्यूम पूछा गया कितना होएगा, वॉल्यूम कितना इंक्रीज होएगा। एक चीज समझ लो, इंक्रीज ही दे। अगर कोई क्वांटिटीज इंक्रीज है, जिमें कि इत्थे अपन ओनली 1 क्वांटिटी दी है, इदा ही स्क्वायर च दी जा सकती है, इदा ही इक्विलेटरल ट्रायंगल च दी जा सकती है, इदा ही रेडियस दी जा सकती है। अगर इंक्रीज है तो डेफिनेटली साडा आंसर भी इत्थे इंक्रीज होके ही आएगा। हुण आएगा किदां, वो तुहाडे सामने है। फटाफट मैनू सारे स्टूडेंट दसो भी तुहाडा आंसर कितना आना चाहिए। क्विकली 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 फटाफट किन्ने स्टूडेंट्स तुसी कह रहे हो कि तुहाडा आंसर इत्थे की होना चाहिए, जल्दी जल्दी फटाफट दसो सारे स्टूडेंट। हुण अपने कोले की है, सवाल समझ लेना है। एक साइड तो अपने कोले कितनी होगी, 100 इंक्रीज हो गई है, दैन अदर नूं आपां की मन्नांगे, आपां सिफर ही मन्नांगे ना। तो कंसैप्ट मेरा की सीगा कि ए बी अपॉन 100। ठीक है राइज, हुण समझो जरा 100 हो गया प्लस 0 हो गया प्लस 100 हो गया इंटू 0 हो गया अपॉन 100 हो गया। ठीक है, 100 नाल 100 खत्म हो गया, तुहाडे कोले कितना आ गया 100% आंसर आ गया। टिक कर दो, अपना आंसर क्लीयर। तो मतलब नथिंग, नो नीड आपां नूं कुछ भी बेसिक फॉर्मूले फिट करन दी। मैंसुरेशन तो बहुत जने डरदे ने, लेकिन आपां तोते डा दांगे। सैशन शेयर कर दिओ, पसंद आवे तो चंगा लगे तो बस बंब बुला दिओ। ये कहंदा बेस ऑफ ए ट्रायंगल इंक्रीज बाय 10%। ठीक है, टू कीप द एरिया अनचेंज द हाइट ऑफ ए ट्रायंगल, हाइट ऑफ ए ट्रायंगल इज द डिक्रीज बाई कितनी होएगी। सवाल समझो, सवाल समझ के अपना आंसर आ। हर सवाल नूं समझना है, दिमाग यूज करना है। इदां नहीं होएगा कि आपां कर दिए। ये कहंदा कि बेस है वो 10% की है, इंक्रीज हो गया। ये कहंदा भी हाइट दसो, अगर इहदा एरिया अनचेंज है, अनचेंज का मतलब सिफर मान लो, नहीं हो सकता भी अनचेंज मतलब कुछ भी मान लो तुसीं XYZ जो भी है। सवाल का मतलब की है, मैं ट्रिक तुहानूं दसी सी कि A + B और AB अपॉन तुसीं की करना है 100 करना है। ठीक है, 100 करोगे तो हुण अपने कोल एरिया बराबर है, तो एरिया आप जूम कर लिया,
दिस इज फर्स्ट साइड 10% है और आप एच नू की मान लेने एक्स मान लो इनू, ठीक है। आ लो जनाब एक्स हो गया तो आप इत्थे लिखांगे 10 इंटू एक्स बटे कितना हो जाना 100 हो जाना। क्लीयर इत्थों तक कंसैप्ट सारे स्टूडेंट समझ पा रहे हो। चलिए हुण आप की करते सी 10 नू चुक के बाहर ले जन्ने तो अपने को 10 बाहर आ गया, ठीक है। हाँ जी, एरिया नू 0 रख लो, अनचेंज है मतलब 0 होएगा। ये अगर अपने को 10 बाहर आएगा तो कादा हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो इत्थे अपने को ब्रैकेट बचे एक्स और ए होगा तुहाडे कोल 10x बटे कितना हो जाना 100 हो जाना। हुण 100 हो जाना तो तुसीं इसनूं की करोगे सिफर ना सिफर कट दोगे। तो सवाल इहदा मतलब इत्थे ये हो गया कि x बटे 1 है और इत्थे x बटे तुहाडे कोले 10 है। दोनों का एलसीएम करोगे 10 है, ये तुहाडे कोले 10x प्लस x हो जाना। इट मीनस है कि 11x बटे 10 हो गया वा। 11x बटे 10 हो गया तो -10 इज इक्वल साडे कोले 11x बटे 10 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाना 100 बटे कितना 11x है और 100 नू जो 11 ना डिवाइड करोगे तो कितना आ जाने 11 नहीं 99 हो जाना ना, यानी 11 9 जा 99 है, 1 बचा तो 11 पार्ट है। तो दिस इज ए माइनस वैल्यू मतलब डिक्रीज है। तो ऑप्शन नंबर केड़ा आ जाना साडे कोले, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंसर आ जाना। क्लीयर है। तो मतलब इत्थे सवाल की सीगा, सवाल ये सीगा कि डिक्रीज इन्होंने पूछा सीगा कि अगर किसी ट्राइंगल दा बेस 10% ਵਧਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ अगर ਉਹਦਾ एरिया अनचेंज रहे मतलब एरिया कोई फर्क ना पवे, जिन्ना पहला सी उन्ना ही रहे, तो ਉਹਦੀ हाइट कितनी डिक्रीज होएगी। तो 9 आप कहांगे 9 एंड 1/11%। मेरी गल समझ पा रहे हो। अगर ये सवाल इस तरीके ਨਾਲ डिजाइन हुंदा, सपोज ये सवाल इस तरीके ਨਾਲ डिजाइन हुंदा कि ਇਹਦਾ बेस है वो 10% की है इनक्रीज है ਅਤੇ हाइट है दी कितनी डिक्रीज है 9 एंड 1/11% है। तो आप इनू की समझते 100 बटे 11% डिक्रीज समझते। तद आप की करते भी एरिए ते कितना फर्क पैंदा आप ए बी अपॉन 100। तदा आप की करना सीगा कि इत्थे +10 लाउंदे, फिर आप लिखते -100 बटे किन्ने 11 है, फिर अपने कोले +10 है इंटू कितना हो जाना 100 बटे 11 ये माइनस है अपॉन अपने कोले 10 है। आप इसनू सॉल्व कर सकते सीगे। नॉट ए टफ कुछ टास्क नहीं है, डिवाइड कर लो इनू, गल ते नहीं है ना, डिवाइड करके आ जाएगा। तो इस सवाल का थोड़ा जा कम समझ लेना तुसीं। चलिए थोनू कंसैप्ट देता, कंसैप्ट क्विट नहीं करोगे। द परसेंटेज इनक्रीज इन द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब व्हेन द ईच साइड इज डबल, मतलब ईच साइड डबल है। ये अपने को क्यूब है, ठीक है। अगर आप क्यूब बनाने इत्थे जस्ट इदा करके एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड, तुहानू समझना पएगा, ठीक है। थोड़ा जा इनू इदा करके डिजाइन करांगे एंड इदा दा करके बनेगा कुछ क्यूब, ठीक है। अगर आप इहदी ईच साइड कर लेने, ईच साइड इहदी डबल हो जाती है। लाइक अगर x सीगी ते साडे कोल 2x है तो कितने % होएगा, तो स्वाभाविक। हाँ जी गाइस, तो हुण आपां की अज्यूम करांगे इत्थे कि अगर ये कहंदा कि परसेंटेज इनक्रीज ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब व्हेन द ईच साइड इज डबल। अगर अपने कोले 100 है, ठीक है, 100 है, दैन अपने कोले 100 है इंटू 100 है और अपॉन 100 है, तो कैंसल हो जाएगा। तो तुहाडे कोले कितना हो गया 200 इत्थे हो गया एंड प्लस 100 इत्थे हो गया। आई थिंक तुहाडे कोले 300% आंसर आ जाना है। तो ऑप्शन नंबर किहड़ा 4th बिल्कुल राइट चॉइस होएगा। तो इदां करके तुसीं कंसैप्ट ते पकड़ बनाओ, ठीक है। अगला सवाल है, इफ द वाटर इज फ्रीज्ड टू बीकम आइस इट्स वॉल्यूम इज इनक्रीज। देखो सवाल का मतलब की है, ये वॉल्यूम इनक्रीज कर रहा है 10%, ठीक है। एंड देन द आइस इज मेल्टेड टू द वाटर अगेन द वॉल्यूम विल बी डिक्रीज। तो वॉल्यूम अगर वो जो डिक्रीज हो जाता है तो कितना होएगा, सवाल ये है, ठीक है। फटाफट सवाल समझो और आंसर दो। थोनू सिर्फ 5 सेकंड का मैं वक्त दे रहा हूं, फटाफट क्विकली। चलिए गाइस, हुण आपां इत्थे की इंप्लीमेंट करांगे जरा समझना है तुसीं। ये कहंदा भी एक साडे कोले फ्रिज बिग आइस है, उस आइस नू आपां आइस दा जो वाटर है ना वॉल्यूम ओदा कितना है इनक्रीज 10% हो जाता है। फिर वो कहता कि इफ आइस इज मेल्टेड टू द वाटर, अगर वो फिर वापस पानी दे विच घुल जाती है बर्फ का टुकड़ा, तो तद उसकी वॉल्यूम किन्ने % डिक्रीज हो जाएगी। सवाल समझो जरा, मेरा सवाल है कि बहुत मजेदार सवाल होएगा। कंसैप्ट सीगा कि a + b अते a × b अपॉन तुहाडे कोले 100 है, ठीक है जी। आ लो जनाब, ठीक है। हालांकि एकदों भी तकड़ियां देसी दवाई मेरे को होर भी ने, पर वो देसी दवाइयां थोड़ा जिहा तुहानूं याद करना पएगा। कई बार तुसीं खुराक गलत ले ली तो फिर देखो खराब भी हो जाएगा, साइड इफेक्ट भी आ जाएगा, पर इसदा साइड इफेक्ट नहीं है। सवाल समझो जरा, 10% इनक्रीज है, मैं इत्थे लिख दिना x% डिक्रीज है, क्योंकि इसने पूछा भी किन्ने % डिक्रीज है, तो x% डिक्रीज है। आ लो जनाब जी 10% इनक्रीज है तो -x% डिक्रीज है, बटे हो गया 100, 0 ना 0 कट दी। ये तुहाडे कोले ये कंसैप्ट इदां करके ये बन गया। हुण आपां मैं इस 10 नूं चुक के जे बाहर ले जां ते काहदा बन जाएगा माइनस दा। इत्थे की बचेगा -x बचया है अते माइनस तुहाडे कोले कितना बचेगा x बटावा कितना बचेगा 10 बचेगा, ठीक है। आ लो जनाब, हुण तुहाडे कोले की बचेगा -10 है
इज इक्वल ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪੋਨ 1 ਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਐਲਸੀਐਮ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ -10 ਬਚੇਗਾ ਔਰ ਇਹ -x ਬਚੇਗਾ ਔਰ ਬਟੇ ਕਿੰਨੇ ਆ ਜਾਣਗੇ 10 ਆ ਜਾਣਗੇ। ਕ੍ਰਾਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 10 ਦਾ ਆਇਆ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ 100 ਹੈ ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਜਦੋਂ ਦੋ ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ -10 ਤੇ -10 ਹੋ ਜਾਏਗਾ -11 ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ x ਬਰਾਬਰ ਦੇਖੋ ਮਾਈਨਸ ਨਾਲ ਮਾਈਨਸ ਕੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਜਾਣਾ 100/11 ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ 11 ਨੂੰ 9 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਤਾਂ 99 ਤੇ 1 ਬਚੇਗਾ 11/100। ਠੀਕ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵਿਨਮਰਤਾਪੂਰਵਕ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਪਟਾਕੇ ਡਾ ਦਿਓ, ਤੋਤੇ ਡਾ ਦਿਓ। ਸਬ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 2 ਤੋਂ 3 ਕੁਐਸਚਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ, 2 ਤੋਂ 3 ਕੁਐਸਚਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ ਇਹ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਚਲਿਏ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਫ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਅ ਸਿਲੰਡਰ ਇਜ਼ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਬਾਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਰੇਡੀਅਸ ਐਂਡ ਹਾਈਟ the each increase by 25% the volume of a cone। ठीक है अगर साढ़े को रेडियस इतने 20% इंक्रीज हो रही है और हाइट भी 20% इंक्रीज हो रही है तो फटाफट इसका आंसर फाइंड करो कितना होएगा। करना कुछ नहीं है, तुसी किवें करोगे समझ लो नू। हालांकि मैं ऊपर एक सवाल तुहानू दिता, तुसी करना वा a प्लस b ये हो जाना है a इंटू b अपॉन 100 हो गया। ठीक है हुण इत्थे 20% इंक्रीज हो जाएगा 20 प्लस तुहाडे कोल 20 इंटू 20 अपॉन 100 सिफर ना सिफर कैंसल है। b कितना हो गया 40 प्लस 4 कितना हो गया तुहाडे कोले 44% है। हुण नैक्सट वॉल्यूम 3 टाइम आएगा। हुण वॉल्यूम 3 टाइम आएगा तो आपां की रख दांगे इत्थे एक टाइम रख दांगे 20 प्लस इहदे च 44 प्लस 20 इंटू 44 अपॉन 100 आ जाना है। ठीक है तो सिफर ना सिफर कैंसिल होगी। दैन हाउ मच 24 64 हो गया, कितना हो गया 44 दूना कितना हो गया 88/10 है तो 64 प्लस हो जाना 8.8 तो दोनों ਨੂੰ जोड़ांगे तो अपने ਕੋਲੇ कितना हो जाना 72.8% अपना आंसर आ जाना। आ लो जी ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਲਿਊਮ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਵੋਲਿਊਮ ਕੱਢੋ, ਫਿਰ ਉਸੇ ਨੂੰ ਥਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਸੈਪਟ ਚੁੱਕ ਕੇ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ 1 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਬੇਸਿਕ ਕੁਐਸਚਨ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ठीक है फटाफट ये जिन्ने भी क्वेश्चंस मैं करवा रहा उस तो बाद ये दूजा नैक्सट क्वेश्चन है दिस इज ऑल्सो 4। मैं थोड़ा 3 क्वेश्चन दिते हैं तुसीं करने हैं और मैनू करके फटाफट कमेंट बॉक्स 'ਚ दस दिओ सर भी बिल्कुल ये कंसैप्ट बहुत अच्छा लग्या। जेकर तुसीं चाहुंदे हो तुहाडे तक बेसिक स्तर तो जबरदस्त तरीके की तैयारी पहुंचे, जिवें कि पहला असीं ट्राइंगल के लगभग 100 ਦੇ 100 तो ज़्यादा क्वेश्चन करांगे, इदा ही स्क्वायर दे करांगे, इदा ही रैक्टेंगल दे करांगे, इदा ही सारे। तो साडियां वापस तो बेसिक्स क्लासेस साडे ऑफिशियल वैबसाइट ते रन हो चुकियां हैं। तुसीं उत्थे जाके पूरी जानकारी लै सकदे हो, जिथे तुहानूं घट्टो घट्ट भी 120 तो 150 टैस्ट दिते जा रहे, क्योंकि टैस्ट बहुत जरूरी हुंदा है। सानूं ये पता करके दस दिंदा है कि साडी तैयारी कितनी है। थैंक यू सो मच। शेयर कर दिओ, लाइक कर दिओ, फिर ही अगली क्लास आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। मिलते हैं फिर नैक्सट सैशन। ख्याल रखो, टेक केयर, बाय बाय।